Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be solving the competency focused practice questions for class 12 ISC for their commerce paper. Okay, so we'll be starting with the MCQs today, that is the part 1 of it. So the first question says that trading on equity is a ratio of equity to debt. When will be the company trading on thin equity? मतलब thin equity कब consider किया जाएगा उसको? When the proportion of debt is high, low when equity is high or equity is low. तो it will be the first one when the proportion of debt is high, and when the proportion of debt is low, it will be considered as trading on thick equity. Okay, to which of the following options the right of preemption is available? So is it debenture holders, financial institutions, existing shareholders or trade debtors? So it is existing shareholders. Right of preemption आपसे कहता है कि whenever a company is bringing up new shares, so वो सबसे पहले अपने existing shareholders को देगी, वो right उनको देगी, and these shares are known as right shares. Okay. Then the next question says that the preference shares on which the holders are entitled to participate in the residual profits of the company in addition to the normal rate of dividend. वो कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको ये राइट मिलता है कि वो कंपनी का जो रेजिडुअल प्रॉफिट्स है आफ्टर पेइंग ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर उसके बाद भी कुछ बच जाता है मनी, द सरप्लस प्रॉफिट, तो उस टाइम पर इनको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, इनको कुछ हिस्सा मिलता है ऑफ दैट प्रॉफिट. एंड वो कौन से काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? दोज आर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. Okay, the next question says that is about SWOT analysis, that says strength, weakness, opportunities and threats. So the turnover of the product has increased as it is of superior quality. तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द फर्म्स एस्पेक्ट? तो क्या वो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है या फिर थ्रेट है? तो इट इज़ अ स्ट्रेंथ टू द कंपनी. उसी की सुपीरियर क्वालिटी मतलब कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपके हाथ में जो इंटरनल है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंट्रोलेबल होती हैं. अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स जो होते हैं वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एंड दीज आर अनकंट्रोलेबल. ओके, so the answer is strength. The next question says that management draws knowledge from various fields, economics, sociology, psychology. So it applies this knowledge to secure the desired results. Which management feature is being highlighted here? So is it distinct entity, integrating force, multidisciplinary or universal? So it is multidisciplinary. Okay, then next one, the type of organization structure. Organization structure जो होता है वो mainly two types का होता है. That is अभी apart from that line and staff organization, जिस kind of diagram यहाँ पर बना हुआ है, तो that is functional and divisional. Okay, functional and divisional organization. अभी spelling इसकी FUNC, ठीक है. तो डिविजनल, यहाँ पर अब डिविजनल कैसे इसको कंसिडर करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, हम उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंडर जब फंक्शंस को मेंशन करते हैं देन इट इज़ कंसिडर्ड एज डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसमें कॉस्मेटिक्स के अंडर अलग फंक्शंस आएंगे, HR, मार्केटिंग, R&D एंड परचेजिंग. फिर गारमेंट्स के अलग अलग अंदर फंक्शंस आएंगे सेपरेट. और अगर इन यूजुअली हम लोग सिर्फ फंक्शनल की बात करते तो उसमें फंक्शंस वैसे ही रहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, लेकिन फिर उसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स को मेंशन कर देते हैं. ओके, तो दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. हेयर द आंसर इज डिविजनल structure, that is divisional organization. The next one, which of the statements best describes management as a discipline? Is it a systematized body of knowledge? वो साइंस एंड आर्ट का पार्ट हो जाता है. Obedience to rules and regulations, order and equity. To this is obedience to rules and regulations, rules in the organization. Okay, the next question says that coordination अगर एक डायग्राम आप देखते हो तो इससे आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नो. प्लानिंग एंड और कंट्रोलिंग आर क्लोजली इंटररिलेटेड. नो. कोऑर्डिनेशन इज़ अ सेंट्रलाइज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नो, इट इज़ इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. वो हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है, लेकिन इट्स नॉट द सेंट्रलाइज फंक्शन की वो बीच में है. ठीक है.
It is the essence of management. It is inherent in all functions of management. Next question. The multinational in a multinational corporation, that is MNC, the finance manager pays more attention to increase in 3% marketing cost as compared to 15% increase in courier expenses. तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द मैनेजर? इज इट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, करेक्टिव एक्शन और स्पैन ऑफ कंट्रोल? तो ये दोनों तो नहीं होते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. दिस इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जो आपसे ये कहता है कि मैनेजमेंट सिर्फ कुछ की रिजल्ट एरियाज पर ही फोकस करेंगे, जिसे हम कहते हैं KRA, ठीक है, जिसमें वो सिर्फ उन फैक्टर्स पर फोकस करेंगे जिसमें दैट इज कंट्रोलेबल. मार्केटिंग कॉस्ट को वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कोरियर एक्सपेंसेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. दूसरा इसी का कॉन्सेप्ट होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो आपसे ये कहता है कि if you are going to control everything, you will end up controlling nothing. मतलब अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी नहीं कंट्रोल कर पाओगे. तो वो आपसे ये कहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करो कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और हमें पता चला है कि उसमें से कुछ 5 एम्प्लॉयज़ हैं जिनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, तो हम सिर्फ इन 5 एम्प्लॉयज़ पर वर्क करेंगे, ना कि उन 100 एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग देंगे सही से बैठा करके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम ट्रेनिंग देंगे नहीं. हम सिर्फ उन 5 एम्प्लॉयज़ पर वर्क करेंगे. ये होता है कि अगर आपके यूजुअल बिहेवियर से कोई डेविएशन हो रहा है तब हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का इस्तेमाल करेंगे. एंड अदरवाइज दिस इज़ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसमें हम सिर्फ कुछ की रिजल्ट्स पर ही फोकस कर रहे हैं, डेविएशन इसमें नहीं है. ठीक है, समझना पड़ेगा चीज़ों को. ओके, माइनर्स मस्ट लर्न इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट हैंडलिंग एंड हजार्ड मिटिगेशन. तो what type of training is being provided to them? This is known as safety training. Job training कोई specific skill के लिए नहीं, refresher नहीं, remedial नहीं. remedial कोई mistake को ठीक करने के लिए होता है, and refresher आपकी old knowledge को new करने के लिए होता है. The next question, the hospital purchases new equipment and machinery for its intensive care unit. तो अभी हमने बताया था कि कोई old knowledge को अगर आप new कर रहे हो तो वो कौन सी kind of training होती है? That is refresher training, the C1. Then next one, Anna specializes in making Christmas decorations and ornaments. She announces a discount of 15% just before Christmas. तो आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रीज़न फॉर ऑफरिंग द डिस्काउंट. अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ही सही है कि स्टॉक को क्लियर करना, जनरेट करना डिमांड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, टू इंक्रीज इमीडिएट सेल्स एंड टू एनहांस द गुडविल ऑफ द फर्म. बट यहाँ पर इफ़ वी कंसिडर दिस इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, तो सेल्स प्रमोशन का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ टू इंक्रीज इमीडिएट सेल्स, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है. तो द आंसर हेयर विल बी इंक्रीज इमीडिएट सेल्स, क्योंकि डिस्काउंट सेल्स प्रमोशन का ही एक पार्ट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मार्केटेड? रेड क्रॉस सोसाइटी परसुएडिंग द पब्लिक टू डोनेट ब्लड, ठीक है, दिस यू कैन मार्केट. गुजरात टूरिज्म परसुएड्स पीपल टू विजिट द स्टेट, ठीक है, आप इसका भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो. पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, ठीक है, बट काउंटरफीट प्रोडक्ट, जो आपके नकली प्रोडक्ट्स होते हैं, फेक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको आप एडवर्टीज नहीं कर सकते. नेक्स्ट, इन द केस of a small number of buyers who are concentrated in one place, you have to tell the mode of promotion that is most suitable. तो क्या एडवर्टाइजिंग वो मास पीपल के लिए होता है, सेल्स प्रमोशन नो, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी. तो इट विल बी पर्सनल सेलिंग, जो जब स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स जो एक स्पेसिफिक एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, हमें उनको टारगेट करना है, तो दैट विल बी पर्सनल सेलिंग दैट वी कैन यूज. देन कम्स regarding RTGS, which of the following statement is incorrect? RTGS facility is provided by core banking solutions, ठीक है. Transactions are settled in batches. The minimum amount for RTGS transaction is 2 lakh, बिल्कुल सही बात है. And transfer is irrevocable and final, ठीक है. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछी गई है, तो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि नेफ्ट जो है वो NEFT
वो बैचेस में होता है, RTGS बैचेस में नहीं होता है, वो रियल टाइम में होता है. Okay, next question says that net working capital is denoted by as an excess of what? तो it is current assets over current liabilities. मतलब current assets minus current liabilities is equal to net working capital. Then next one is business environment. A well motivated and efficient employee helps a business to effectively and efficiently achieve its objectives. Which internal factor is influencing the business organization? वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉई किसके अंडर आता है? मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नो, ह्यूमन रिसोर्सेज और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. तो इट विल बी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ई बैंकिंग? देयर इज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट. सबसे पहला वाला ही है, क्योंकि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन पर्सन एंड द बैंक नहीं होता है ई बैंकिंग में. ठीक है. देन नेक्स्ट वन, वैसे तो यू कैन स्टडी और रीड आउट ऑल द पॉइंट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट अ बैंक इन्फॉर्म्स इट्स अकाउंट होल्डर्स रिगार्डिंग एनी ट्रांजैक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस फ्रॉम देयर अकाउंट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वे. तो बोला गया है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक उसको कैसे इन्फॉर्म करेगा? ही इज़ गोइंग टू इन्फॉर्म, या बैंक इज़ गोइंग टू इन्फॉर्म थ्रू शॉर्ट मैसेज सर्विस दैट इज़ SMS. ओके, जिसके वो कुछ पैसे भी चार्ज करता है, 17 रुपये चार्ज कर लेता है. चूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. तो अ सडन चेंज इन द मार्केट कंडीशन कैन रेंडर अ वेल क्राफ्टेड प्लान इनइफेक्टिव. सबसे फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल डिडक्शन बेस्ड डेटा. ठीक है. देयर इज वन पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो नीड ऑफ प्लानिंग. ठीक है. प्लानिंग इज नेवर एंडिंग एक्सरसाइज. ठीक है. तो सबसे बोला गया कि अगर विच वन ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो दिस बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव पार्ट में आती है, बट आपको बताना है कि उसका लिमिटेशन क्या है. कि अगर कोई भी सडन चेंज हो जाता है मार्केट कंडीशन में, तो उस टाइम पर आप पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपके पूरे प्लान को ख़राब कर देता है. Okay, the next question that says Karun has joined as a media in charge in the entertainment company. He always ensures that the work has been divided into small manageable activities and the activities of similar nature are grouped. दो चीज़ें हैं, you will divide it into small activities और जो activities है वो group कर दी जाएंगी. ठीक है. तो यू हैव टू टेल कि कौन सा पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का. इज इट आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क? नो, इट इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन, दैट इज़ 2. देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. सो दिस इज द सेकेंड वन. जब यहाँ पर बोला गया, आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज व्हेन आई वॉज सॉल्विंग इट, कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क होगा, क्योंकि यू आर डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज़. बट उसके बाद वो एक और चीज़ को खींच लेता है, दैट इज़ सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को हम ग्रुप करें. या तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग ग्रुप कर दो, या तो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग ग्रुप कर दो. तो हेयर द आंसर विल बी डिपार्टमेंटलाइजेशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ परचेज और बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स? जब आप बाइंग और असेंबलिंग चेक करोगे तब यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि परचेज बाय इंस्पेक्शन डिस्क्रिप्शन ग्रेड है, बट बाय स्टैंडर्ड्स नहीं है. देन नेक्स्ट वन, वाई डज अ कंपनी इशू बोनस शेयर्स? कंपनी बोनस शेयर्स को क्यों इशू करती है? तो द आंसर इज टू कैपिटलाइज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. इसके आंसर की में ये वाला दिया है, बट ये आंसर सही नहीं है. ठीक है. नीदर दिस टू कैपिटलाइज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इज द ओनली आंसर जिसमें बोनस शेयर्स का यूज़ होता है, जो वो अपने एम्प्लॉयज़ को इशू कर देती है बोनस शेयर्स. ओके. देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ सोल ट्रेडर? सोल ट्रेडर के लिए कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है? ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका खुद का पैसा है, रिटेन प्रॉफिट है. ही कैन टेक लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स, बट ही कैन नॉट गो फॉर पब्लिक डिपॉजिट्स. ओके. देन नेक्स्ट वन, एक्स लिमिटेड, अ मल्टीनेशनल कंपनी वॉन्ट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्ट्स लाइन फॉर विच मोर मशीनरी एंड कैपिटल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड. एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसको अपनी प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करना है और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना है, तो उसको सिर्फ इसके लिए उसको सिर्फ मशीनरी और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा इसके अलग से बुद्धि मत लगाना. ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इट्स रिक्वायरमेंट? तो उसको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होगी? वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, बोथ
और नो एडिशनल कैपिटल। तो ऑब्वियसली उसको जब लिखा हुआ है कि मशीनरी और इक्विपमेंट की ज़रूरत है, मतलब उसे फिक्स कैपिटल की ज़रूरत है। ओके, द नेक्स्ट वन, Savi, a business owner, wants to transfer 4 lakh rupees immediately to his supplier for the payment of raw materials. Which of the following is the quickest way of transferring? Now quickest way जहाँ पर बोला गया तो सबसे पहली चीज़ आता है IMPS and नेफ्ट, क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट लिमिट है दैट इज़ 4 लाख और यहाँ पर RTGS की अमाउंट लिमिट जो होती है वो 2 लाख होती है, तो RTGS will only be taken here, that is real time gross settlement. Okay, then next one, Tanu runs a handloom shop in her hometown. She has 10 people employed in her shop. Whenever it comes to settling conflicts among her employees, she is more biased towards her female employees. So you have to identify the principle that is being violated here. Is it a scalar chain जिसमें एक order follow होता है कि आपको इस person को बताना है, तो एक authority responsibility की line को ही follow करना है. Is it order, right man at the right place and right material at the right place? इक्विटी और स्पिरिट डे कॉर्प्स. स्पिरिट डे कॉर्प्स मतलब कि यूनिटी एंड टीम वर्क इसमें है, ठीक है. एंड इक्विटी, जस्टिस के साथ किसी पर्सन को ट्रीट करना है, हेयर इज इक्विटी. तो यहाँ पर दिस राइट इज बीइंग वायलेटेड, जहाँ पर सबको एक जैसे नहीं ट्रीट किया जा रहा है. देन नेक्स्ट वन, अवनी परचेज अ फेस सीरम फ्रॉम अ वेल नोन कॉस्मेटिक ब्रांड. शी रेफ्रिजरेटेड द फेस सीरम टू मेक इट कोल्ड एंड देन अप्लाइड. She developed rashes all over her face. Label did not provide any instructions about the storage of the product. Which of the right is being violated? To be heard, informed, safety or redressal. तो it is right to be informed. देखो confusion हो सकती है क्योंकि प्रोडक्ट नुकसान किया हुआ है तो हम सेफ्टी की भी बात कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है दैट द लेबल डिड नॉट प्रोवाइड एनी इंस्ट्रक्शंस अबाउट द स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट. जो लेबल था वो कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा था रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट. तो वहीं पर ही उसका सबसे पहला राइट जो है वो वॉयलेट हो गया है, दैट इज़ टू बी इन्फॉर्म्ड. अगर लिखा होता फिर वो चीज़ उसको नुकसान की होती, देन इट वुड बी राइट टू सेफ्टी की कंज्यूमर को हजार्डस प्रोडक्ट सेल कर दिया गया. ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे. रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट पार्ट. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट विशेज़. थैंक यू.